بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اب تم سے تنہائی میں ملتے وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، بابا صاحب کے ادارے والے تمہاری نگرانی کرتے ہوں گے، وہ تمہارے ذریعے میری شارک تک پہنچ سکتے ہیں۔ پارس نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، کوئی میری نگرانی نہیں کرتا، مجھے یہاں آئے 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ شلپا نے آ کر گڑبڑ کی، پھر میری نگرانی کرنے والے کیوں نہیں آئے؟ اس میں بھی کوئی راز ہوگا۔ سونیا کی مکاریاں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں۔ کیا یہ بھی مکاری ہے کہ تم نے شلپا کو دماغی اذیتیں پہنچائیں اور ہمارے کسی خیال خوانی کرنے والے نے مداخلت نہیں کی؟ شلپا جیسی ٹیلیپیتھی جاننے والی تمہارے ہاتھوں میں آ رہی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شلپا اور مرینا دونوں اس کمرے میں ہیں۔ ہمارے آدمی تم دونوں کو آسانی سے گرفتار کر سکتے ہیں۔ شاید سونیا اس کشمکش میں ہو کہ میں اصل مرینا ہوں یا مرینا کی کوئی اعلی کار، اس الجھن کے باعث اس کے آدمی ادھر نہ آ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے الجھن ہوگی، مگر شلپا کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ شلپا کو تم سے چھین کر لے جانے کے لیے آ سکتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پارس نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا، کہنے لگا، مرینا، دوسرے پہلو سے بھی سوچو۔ میرے یہاں آنے کی خبر کسی کو نہیں ہے، اور شلپا کے یہاں آنے تک کوئی اس کے دماغ میں بھی نہیں تھا۔ کوئی ہوتا تو شلپا کو دماغی اذیتوں سے بچا لیتا، کیونکہ یہ عورت سونیا ماما کے لیے بھی بے حد اہم ہے۔ وہ قائل ہو کر بولی، ہاں، میں خامخواہ خدشات میں گھر کر محبت کے قیمتی لمحات ضائع کر رہی ہوں، تو پھر مجھ سے دور کیوں ہو؟ ذرا صبر کرو، دیکھو یہ ہوش میں آ رہی ہے۔ میں ابھی جوجو کے عمل کا توڑ کر کے اسے اپنی معمولہ بناؤں گی، پھر اسے تنویمی نیند سلا دوں گی، اس کے بعد تو رات ہماری ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بستر کے پاس گئی۔ شلپا کی سانسیں نارمل ہو رہی تھیں۔ مرینا نے اس کے اندر پہنچ کر دیکھا، وہ ہوش میں آ رہی تھی، چند لمحات میں آنکھیں کھولنے والی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے نہیں دیں، اس کے کمزور دماغ پر عمل کرنے لگی۔ پارس بیزار ہو کر صوفے پر لیٹ گیا، اس کی فطرت بھی سانپ جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے شکار کو سونگھ کر پہچان لیتا تھا۔ مرینا سے اس کی پہلی قربت جگت آنٹی کے گیسٹ روم میں ہوئی تھی۔ دوسری بار قید خانے کی تاریکی میں وہ آئی تھی اور اس نے تاریکی میں اسے پہچان لیا تھا، لیکن ہوٹل کے کمرے کی بھرپور روشنی میں وہ آئی تو وہ نہیں تھی، مرینا کی کوئی اعلی کار تھی۔ پارس نے کمرے میں داخل ہو کر اسے بازوؤں میں لیتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ وہ بدن نہیں ہے جو گیسٹ روم اور اس کے بعد تاریک قید خانے میں آیا تھا۔ مرینا جذبات میں اندھی نہیں ہوتی تھی، دوسروں کو اندھا کر دیتی تھی۔ ویسے اس نے اپنی اعلی کار کو بھیج کر پارس کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ وہ محتاط رہ کر سونیا کی چالوں کو سمجھنا چاہتی تھی، اور سونیا ایسی چال باز تھی جسے سمجھنا تقریباً ناممکن تھا۔ جب شلپا کمرے میں آئی تھی تب سلمان نے پارس کے پاس آ کر پوچھا تھا، کیا یہ مرینا ہے؟ نہیں، اس کی اعلی کار ہے۔ سلمان شلپا کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان کے جاسوس اس ہوٹل میں نہیں آئے تھے۔ جب شلپا اور اس کے باڈی گارڈز بے بس ہو گئے تو وہ سونیا کے پاس آیا اور اسے تمام رودات سنا کر بولا، شلپا بے بس ہو گئی ہے، مرینا کہہ رہی ہے کہ شلپا کو اپنی معمولہ بنائے گی، کیا میں مداخلت کروں؟ بالکل نہیں، تم خاموشی سے تماشا دیکھو۔ جب مرینا اس کے دماغ میں جوجو کے تنویمی عمل کا توڑ کرے گی اور اپنی معمولہ بنانا چاہے گی تو چپ چاپ اس کے تنویمی عمل کو ناکام بناتے رہنا۔ جب وہ جوجو کے عمل کا توڑ کرنے میں ناکام رہے گی تو شلپا پہلے کی طرح ہماری ہی گرفت میں رہے گی۔ میں سمجھ گیا، مرینا کے ناکام عمل کے بعد شلپا تنویمی نیند سوئے گی۔ ابھی اس نے کہا ہے کہ اسے تاریک قید خانے میں پہنچا کر اس کا دماغ درست کرے گی۔ اگر میں شلپا کے دماغ میں مسلسل موجود رہوں گا تو اس کے ذریعے تاریک قید خانے کا سراغ مل جائے گا۔ بالکل ٹھیک، تم اور سلطانہ اس کے دماغ میں باری باری رہو، اس طرح مرینا کے خفیہ اڈے تک ضرور پہنچو گے۔ سلمان تھوڑی دیر بعد شلپا کے دماغ میں آیا تو وہ ہوش میں آ گئی تھی اور مرینا اس پر عمل کرنے والی تھی۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ شلپا کے بستر کے پاس جو حسینہ کھڑی ہوئی تنویمی عمل کر رہی ہے وہ مرینا نہیں ہے، اس کی اعلی کار ہے، اور مرینا کہیں آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سے شلپا کے دماغ میں پہنچ کر تنویمی عمل میں مصروف ہو گئی ہے۔ خوب چکر چل رہا تھا۔ سونیا کی حکمت عملی سے مرینا اپنے مقاصد میں بظاہر کامیاب ہو رہی تھی اور کامیابی کی خوش فہمی میں اپنے لیے گڑھا کھودتی جا رہی تھی۔ اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ شلپا جس خفیہ اڈے میں پہنچائی جائے گی وہی مرینا کی خفیہ رہائش گاہ ہوگی۔ ہپناٹزم کا عمل ہو گیا۔ مرینا کی ڈمی نے بستر کے پاس آ کر پارس کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کے پاس آ کر دیکھا، اس کا لاک ٹوٹا ہوا تھا۔
अब अंदर से बंद नहीं हो सकता था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। पारस ने आंखें खोलकर देखा, शल्पा बिस्तर पर सो रही थी। मरीना की आला कार नज़र नहीं आई। वो सोफे से उठकर बाथरूम में आया, वो वहाँ भी नहीं थी। उसने सोच के ज़रिए पुकारा, मरीना तुम कहाँ हो? उसे अपने दिमाग में जवाब नहीं मिला। उसने सोचती हुई नज़रों से शल्पा को देखा, फिर तेज़ी से चलता हुआ बाहर आया। वो कॉरिडोर के आखिरी सिरे से चली आ रही थी। उसने पूछा, तुम कहाँ गई थीं? वो बोली, हमारे कमरे का सिर्फ दरवाज़ा ही नहीं, टेलीफोन भी ख़राब है। मैंने नीचे काउंटर पर जाकर दूसरा कमरा लिया है, 712 नंबर का कमरा है, आओ। वो पारस का हाथ पकड़कर उधर जाना चाहती थी। उसने कहा, लेकिन इस कमरे में शल्पा सो रही है। वो अभी खुद ही बेदार होकर चली जाएगी, सुबह तक अपनी रिहाइश गाह में छुप कर रहेगी, मगर मैं सुबह से पहले ही उसके दिमाग में जाऊंगी और उसे दिमागी तौर पर गायब करके तारीख कैद खाने में पहुंचा दूंगी। सलमान ऐसे वक्त पारस के पास आकर ये बातें सुन रहा था। उसने कहा, बेटे मैं सुबह तक शल्पा के दिमाग में रहूंगा, आज मरीना का खुफिया अड्डा ज़रूर मालूम होगा। वो चला गया। पारस मरीना की आला कार के साथ कमरा नंबर 712 में आया। वो आला कार दरवाजे को अंदर से बंद करके उसके करीब आई, फिर उसके गले का हार बन गई। पारस ने पहले तो उसे बेदिली से कबूल किया, फिर यकबारगी चौंक गया। या हैरत, ये वही बदन था जो पहले गेस्ट रूम की तन्हाई में और उसके बाद कैद खाने की तारीकी में मिला था। वो थोड़ी देर पहले वाली आला कार नहीं थी, हकीकतन मरीना थी। बात समझ में आ गई। मरीना ने अपने मोहतात तरीका कार के मुताबिक उसी होटल में पहले ही से 2 कमरे बुक करवाए थे। कमरा नंबर 707 में उसकी आला कार आई थी और वो खुद कमरा नंबर 712 में बैठकर ख्याल ख्वानी करती रही थी। शल्पा पर अमल करने के बाद जब यकीन हो गया कि अब कोई दुश्मन इधर नहीं आएगा, तो उसने अपनी आला कार को वहां से रवाना कर दिया और कमरा नंबर 712 से निकलकर पारस से आ मिली। वो थोड़ी देर पहले बेदिली से कबूल करने वाला था, अब उसे दिल से कबूल करने लगा। एक तो इसलिए कि उस पर सचमुच दिल आ गया था, दूसरा ये कि वो सचमुच वही थी जिसे सोनिया शिकंजे में कसना चाहती थी। अब क्या देर थी? पारस गर्दन दबोच लेता तो वो ख्याल ख्वानी भूल जाती, लेकिन ये जल्दबाजी नुकसान भी पहुंचा सकती थी। बंदूक की गोली को कोई मुट्ठी में कैच नहीं कर सकता। मरीना अपनी जहानत भरी मक्कारी से गोली की तरह आर पार हो जाती थी, किसी के जिस्म में या हाथ में नहीं ठहरती थी। पहली बार मैंने और सलमान ने उसे पकड़ना चाहा था, मगर वो बड़ी सफाई से हमें उल्लू बनाकर निकल गई थी। दूसरी बार पारस उसे पकड़ने वाला था, वो पारस को भी चक्कर में डालकर चली गई थी। तीसरी बार भी उसने बेबस करके तारीख कैद खाने में पहुंचाया था। ऐसी ज़बरदस्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करती थी कि सोनिया भी उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। ऐसी सूरत में पारस जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। अगर वो उसके खिलाफ कोई कदम उठाता और वो हमेशा की तरह बच निकलती, तो ये भेद खुल जाता कि वो मरीना का मामूल और ताबेदार नहीं है, उससे फ्रॉड कर रहा है। वो बड़े तहम्मुल से सलमान और सुल्ताना का इंतज़ार करने लगा। अपनी सोनिया ममा की तरह उसकी भी एक उंगली में ऐसी अंगूठी थी जिसके ज़रिए वो मरीना को आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला कर सकता था, और ये उसी वक्त मुनासिब होता जब सलमान उसके कमज़ोर दिमाग पर कब्ज़ा जमाने के लिए मौजूद होता। लेकिन वो नहीं था। उसे सुबह तक शल्पा के दिमाग में आते जाते रहना था। शल्पा इतनी अहम थी कि वो और सुल्ताना सुबह तक पारस के पास ना आते। उन्हें ये मालूम नहीं हो सकता था कि अब शल्पा से ज़्यादा वो लड़की अहम हो गई है जिसे वो मरीना की डमी समझकर चले गए थे, और उनके जाते ही किरदार बदल गए थे। बाजी पलट गई थी। बाजी यूं भी पलट रही थी कि पारस मरीना की कुर्बत से मदहोश हो रहा था। उसकी ज़िंदगी में कुछ चारा डालने वालियाँ और चाहने वालियाँ आई थीं जिन्हें वो भूलता गया था। सिर्फ एक जोजो ऐसी थी जो बचपन से दिमाग में नक्श थी। उससे इतना गहरा लगाव और ऐसी शदीद मोहब्बत थी कि उसकी एक आह पर वो अपनी जान दे सकता था। लेकिन नौजवानी के कुछ मुँह ज़ोर तकाजे होते हैं। ये तकाजे केले के छिलके की तरह पाँव तले आकर फिसलने पर मजबूर कर देते हैं। मरीना में ऐसी खूबियाँ थीं जो पिछली खूबियों को भुला देती थीं। वो कोई जादूगरनी थी, अपनी एक एक अदा से सहरज़दा कर देती थी। मुमलिकत तन्हाई में सिर्फ उसके हुस्न शबाब का सिक्का चलता था। पारस सोचना और समझना चाहता था कि यह कैसी तिलिस्माती बला है जिसे छोड़ने को जी नहीं चाहता। जी चाहता है रात लंबी होती जाए और सुबह ना हो। सुबह होगी तो सलमान अंकल पहुंच जाएंगे, उसे ट्रैप करेंगे। मरीना को फ्रॉड का इल्म होगा तो मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी, फिर वो कभी उसकी तन्हाई में नहीं आएगी।
कभी आएगी तो उसके हुजूर पहली जैसी चाहत से अपनी जवानी चिकनाचूर नहीं करेगी। वो उसे खोना नहीं चाहता था, कुछ ज्यादा ही बावला हो गया था। मरीना होशो हवास में रहने की आदी थी। पारस की जहरीली कुर्बत के बावजूद उसे याद था कि सुबह से पहले शिल्पा को तारीख कैद खाने में पहुंचाना है। अगरचे जी चाहता था जहर का नशा कम ना हो, बढ़ता रहे, मगर अकल कहती थी पारस तो अपने बस में है, कहाँ जाएगा, मैं फिर उसके करीब आ जाऊंगी। वो उठते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं शिल्पा के पास जा रही हूँ। वो हाथ पकड़कर बोला, मुझे छोड़ कर जा रही हो? उसने हंसते हुए कहा, सिर्फ दिमागी तौर पर जाऊंगी। वो हाथ छुड़ाकर बाथरूम के साथ वाले स्टोर रूम में गई जहां लिबास तब्दील किया जाता था। फिर 1 मिनट के अंदर ही स्टोर रूम से निकल आई। उसके हाथों में एक नाइटी थी। वो बोली, अभी रात के 2:30 बजे है, मैं 1 घंटे बाद भी शिल्पा के पास जा सकती हूँ, आओ बालकनी में खड़े हों। वो पारस को देखकर मुस्कुराई, फिर इस अदा से अंदर गई कि पारस को भी उठकर जाना पड़ा। बस यूं ही जज्बात में आकर आदमी अकल से काम लेना छोड़ देता है। पारस को समझना चाहिए था कि रात के 2:30 बजे बालकनी में जाने का क्या मकसद है। पारस ने रात नहीं देखी, वक्त नहीं देखा, मरीना की अदाएं देखीं और उसे हाथ से फिसलने का मौका दे दिया। वो आलाएकार लड़की कहीं दूर नहीं गई थी। मरीना ने उसे कमरा नंबर 707 से बुलाकर उसी कमरा नंबर 712 के स्टोर में सुला दिया था और खुद कमरे में पारस के साथ 2:30 बजे तक वक्त गुजारती रही थी। फिर वो उठकर स्टोर में गई, ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी आलाएकार को जगाया, उसका लिबास उतार कर उसके हाथ में एक नाइटी देकर स्टोर से बाहर भेज दिया। खुद स्टोर में रही। उसने आलाएकार की जुबान से कहा, अभी रात के 2:30 बजे हैं, मैं 1 घंटे बाद भी शिल्पा के पास जा सकती हूँ, आओ हम बालकनी में खड़े हों। इस तरह वो बालकनी में गई। पारस भी उसके पास आ गया। मरीना का रास्ता साफ हो गया। वो स्टोर से निकली, खाली कमरे से गुजरती हुई बाहर जाने के दरवाजे तक आई, फिर पलट कर देखा। अपनी आलाएकार और पारस के कहकहे सुनाई दे रहे थे। वो मुस्कुराती हुई दरवाज़ा खोल कर चली गई। इसे कहते हैं इंसान की नफ्सियात और उसके जज्बात से खेलने वाली जहानत। वो बड़ी अक्ल से और एहतियात से आई थी। बड़े इत्मीनान से पारस को बिस्तर की तरह बिछाया था, कंबल की तरह ओढ़ा था, फिर आराम से टहलती हुई चली गई थी। उसे पकड़ना तो दूर की बात है, पारस के सिवा कोई अब तक उसे छू तक नहीं पाया था। अगर वो ऐसी ही जहानत और हिकमत अमली से काम लेती रही तो कभी कोई उसकी गर्द को भी ना पा सकेगा। ऐसी बात नहीं थी कि वो पारस पर किसी तरह का शुबा कर रही थी, नहीं, वो पूरे यकीन से उसे अपना वफादार समझ रही थी। अलबत्ता उसने अपना ये उसूल बनाया था कि किसी पर भरोसा नहीं करेगी, ना अपने बाप पर ना अपने यार पर। उसने अपने बाप एलन डी फॉन्जा को भी अपना आलाकार बना रखा था। भाई के दिमाग पर भी कब्जा जमा कर उससे काम लेती थी। बाप और भाई को अपने किसी राज में शरीक नहीं करती थी। पारस को भी अपने किसी राज में शरीक ना करने की एक और वजह यह थी कि सोनिया के ख्याल ख्वानी करने वाले पारस के दिमाग में आते जाते होंगे। अगर वो किसी चालाकी से उसके चोर ख्यालात पढ़ते होंगे तो ये भी मालूम कर लेंगे कि मरीना उसे अपने किन राजों में शरीक करती है, और मरीना ऐसी गलती करना जानती ही नहीं थी। बहरहाल वो जा चुकी थी। पारस उसके साथ बालकनी में छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसे ही वक्त वो बदन अजनबी सा लगा। वो उसे खींचकर कमरे में ले आया, फिर हैरानी से बोला, क्या तुम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो? वो बोली, तुम्हारी इस बात का मतलब क्या हुआ? पारस ने सोचा, अगर वो असल की जगह डमी मरीना के आने की बात करेगा तो उस डमी के दिमाग में रहने वाली मरीना को यकीन हो जाएगा कि वो ताबेदार होने के बावजूद असल और नकल को छू कर और सूंघ कर पहचान लेता है। वो फौरन ही बात बनाते हुए बोला, मतलब ये है कि पहले तुम मेरी आगोश में गुम थीं, फिर शिल्पा के पास जाने के लिए मुझसे दूर हो गईं। 1 मिनट के बाद ही तुमने फिर रंग बदला, शिल्पा के पास जाने का इरादा मुलतवी किया और इतनी रात को अपने साथ मुझे भी बालकनी में ले गईं। ओ गॉड, इतनी देर ठंडी हवा में खड़े रहने से मुझे सर्दी लग रही है। आलाकार उसके करीब आई। वो बोला, 3 बजने वाले हैं, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो बिस्तर पर गिर पड़ा। डमी उसके पास आकर बोली, ऐसी भी क्या बेमुरवती है, क्या मुझसे दिल भर गया है? वो बोला, मेरे दिमाग में आओ। दिमाग में? वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं कैसे आऊं? तुम मरीना हो, टेलीपैथी की शहजादी हो, फिर मुझसे पूछ रही हो कैसे आऊं? हाँ, मेरे अंदर भी कोई यकीन दिलाता है कि मैं टेलीपैथी जानती हूँ। मेरे अंदर कोई बोलती है, बल्कि बोलती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि दिमाग में कैसे जाते हैं। वो समझ गया कि मरीना अभी अपनी आलाकार के अंदर नहीं है। उसने पूछा,
तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम मरीना डी फॉन्जा हो? ये वही मेरे दिमाग में बोलने वाली कहती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग में बोलने वाली खुद मरीना है। तुम्हें अपने पैदाइशी नाम और असली शख्सियत के मुतालिक मालूम होना चाहिए। यही मेरी शख्सियत है जिसे तुम देख रहे हो, और नाम वही मरीना है। उसी वक्त मरीना ने मुखातिब किया। वो 1 मिनट पहले आई थी और उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। उसने पूछा, पारस, तुमने कैसे पहचाना कि ये मेरी डमी है? वो बोला, थोड़ी देर पहले कोई मेरे दिमाग में आना चाहता था। मैंने सांस रोककर तुम्हारी डमी से कहा कि मेरे दिमाग में आओ। मैं चाहता था तुम मेरे अंदर रहकर दूसरे टेलीपैथी जानने वाले की बातें सुन सको, मगर डमी की ज़ुबान से सुनकर हैरानी हुई कि ये ख्याल ख्वानी नहीं जानती है। हाँ, ना ख्याल ख्वानी जानती है, ना अपनी असलियत इसे मालूम है। ये हमेशा सहरज़दा रहती है और मेरे काम आती रहती है। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो। तुम इस डमी को मेरे पहलू में भेजकर मुझे धोखा देती रही हो। वो बिस्तर से उठकर जूते पहनते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे बदन को छूने का ख्याल दिल से निकाल दूंगा। तुम ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम हमेशा मुझे अपनी डमी के चक्कर में डालती रहोगी। वो बोली, गुस्सा ना करो, मैं कसम खा कर कहती हूँ, अभी 2:30 बजे तक मैं ही तुम्हारे पास थी। मैं अपने हुस्न शबाब का एक एक ज़र्रा तुम्हें देकर आई हूँ। वो जाने के लिए उठ रहा था, फिर बैठकर बोला, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। क्या ये बात अकल तस्लीम करेगी कि 2:30 बजे तक तुम मेरे पास थीं? फिर मैं तुम्हारे साथ बालकनी में गया तो तुम असली से नकली बन गईं। मरीना ने उसे तफसील से बताया कि किस तरह डमी पहले से स्टोर रूम में थी और किस तरह स्टोर में जाकर उसने डमी को बालकनी में जाने का हुक्म दिया। फिर पारस भी बालकनी में गया तो असली मरीना स्टोर से निकलकर उस कमरे से और होटल से बाहर चली गई। उसने पूछा, क्या तुम मुझे बताकर ऐसा नहीं कर सकती थीं? सॉरी पारस, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम्हारे लोगों पर नहीं करती। मैं तुम्हें अपना ये मंसूबा बताती और ऐसे वक्त तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे अंदर आकर सुन लेते तो मैं होटल से निकल ना पाती। ठीक है, तुमने एहतियातन ऐसा किया, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन ये तो सोचो, मेरे लोग उस वक्त भी तो आ सकते थे जब तुम मेरे पास थीं। उन्हें तुम्हारी मौजूदगी का इल्म हो सकता था। हाँ, इसीलिए तो मैंने पहले डमी को भेजा। जब यकीन हो गया कि मेरे लिए ख़तरा नहीं है तो मैं अपने पारस के पास आ गई। लेकिन आज मैं बहुत बड़े ख़तरे से बाल बाल बची हूँ। कैसा ख़तरा? जब शल्पा होटल में आई तो सलमान उसके दिमाग में मौजूद था। मैं शल्पा को मामूला बनाकर तारीख कैद खाने में पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सलमान ने मेरे अमल को नाकाम बना दिया। ये बात मुझे चंद मिनट पहले मालूम हुई। कैसे मालूम हुई? मैं तुम्हारे पास से उठकर होटल के बाहर गई। अपनी कार में बैठकर मालूम करना चाहा कि शल्पा जाग रही है या सो रही है। उसके अंदर पहुंचकर देखा वो जाग रही थी, अपने लिए ख़तरा महसूस कर रही थी, क्योंकि आंखें बंद होने से पहले वो एक होटल के कमरे में थी और आंख खुलने के बाद खुद को अपनी रिहाइशगाह में पा रही थी। ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि मरीना ने उसे अपनी मामूला बनाकर आज़ाद छोड़ दिया है। आइंदा जब भी चाहेगी उसके कान पकड़कर अपनी खिदमत कराएगी। पारस ने पूछा, क्या अंकल सलमान उसके दिमाग में थे? हाँ, पता नहीं तुम्हारा अंकल कब से उसके अंदर छुपा हुआ था। वो समझना चाहता था कि मैं भी शल्पा के दिमाग में हूँ या नहीं। वो बड़ी देर से था। जब यकीन हो गया तो बोला, तुम बार बार मरीना को मुखातिब कर रही हो। वो मौजूद होती तो जवाब देती। वो चौंक कर बोली, कौन? सलमान? ये तुम लोग किस तरह मेरे दिमाग में चले आते हो? क्या तुम सब ने मुझे अपनी मामूला बनाया हुआ है? कोई भी शख्स एक वक्त में किसी एक का मामूल बनता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी मामूला हूँ और मरीना ने मुझ पर अमल नहीं किया है। उसने अमल किया था, मैंने नाकाम बना दिया है और तुम्हारे दिमाग को हिदायत दी हैं कि तुम मरीना की सोच की लहरों को 12 घंटे तक महसूस नहीं करोगी, ताकि वो तुम्हें अपनी मामूला समझकर खुश रहे। वो 12 घंटे के अंदर तुम्हें अपने खुफिया अड्डे में पहुंचाना चाहती है। हम तुम्हारे ज़रिए मरीना तक पहुंच जाएंगे। पारस मरीना की ज़ुबान से ये सुन रहा था कि सलमान ने शल्पा से गुफ्तगू करके कितनी बड़ी गलती की है। इस तरह वो समझ गई थी कि सोनिया के आदमी उसे घेरने क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि होटल में मरीना की डमी भी हो सकती थी। लेकिन शल्पा के ज़रिए मरीना की मसरूफियात को देखने समझने के बाद उसे घेरते वक्त कोई धोखा ना होता। मरीना ने कहा, पारस, अगर शल्पा ना आती तो सलमान की तमाम तवज्जो मुझ पर होती। आज मुझे शल्पा की बेवक्त मदाखलत ने बचा लिया, मगर आइंदा मैं इस तरह तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। फिर कैसे मिलोगी? इस किस्म के सवालात ना करो। मैं जवाब दूंगी और अपने राज में शरीक करूंगी तो तुम्हारे दिमाग में रहकर सुनने वाले बहुत हैं। क्या मैं भी सलमान जैसी हमाकत करूं? वो उठकर होटल के कमरे से निकलते हुए बोला,
مجھے انکل کی غلطی سے اور تمہارے دیگر معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھ سے صرف محبت اور ملن کی بات کرو۔ تم میرے لیے تڑپتے ہو تو اچھا لگتا ہے، یقین کرو میں بھی تڑپتی ہوں اور قسم کھا کر کہتی ہوں میرے جسم و جاں کا مالک کبھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ کسی نے مجھے چھونا بھی چاہا تو میں اسے جہنم میں پہنچا دوں گی۔ وہ بولا، یہ تو محبت اور وفا کے عہد و پیماں ہیں۔ بے شک تم مجھے جان سے زیادہ چاہتی ہو، لیکن ہم اپنے پرائے کے خوف سے کب تک دور رہیں گے؟ صرف 4 دن صبر کرو، پھر میں تمہارے پاس ایسے آؤں گی کہ ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ مجھے اجازت دو، میں پھر رابطہ کروں گی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، چند لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر حضرت عیسیٰ مسیح کی تصویر کے سامنے آئی، اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنایا، پھر سر جھکا کر بولی، اے ابن مریم، میں نے تیری حیات مقدسہ سے صبر سیکھا، دانائی سیکھی۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں جو جذبات میں اندھا نہیں ہونے دیتے۔ اے مسیح معظم، تیرا شکریہ، آج میں پھر تباہی سے بچ گئی۔ وہ اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنا کر وہاں سے چلتی ہوئی بستر پر آئی۔ یہ طے کر لیا کہ صدا پارس کے ساتھ رہنے کے لیے ایسی حکمت سے کام لے گی جو دشمنوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام۔ اس لیے اس نے آنکھیں بند کیں اور دماغ کو ضروری ہدایات دے کر نیند میں گم ہوتی چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے پارس کی محبوباؤں کی لسٹ بنائی۔ پتہ چلا کہ اس کی زندگی میں جو بھی آئی وہ حالات کے بہاؤ میں بچھڑ گئی۔ اس نے تل ابیب میں ایک یہودی حسینہ سے شادی کی تھی، اسے پیرس لے کر آیا تھا، لیکن سپر ماسٹر کے ایک خیال خوانی کرنے والے نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ جو کی حیثیت سب سے الگ تھی۔ مرینا اچھی طرح جانتی تھی کہ فرحاد کی فیملی میں جو مان اور مقام جو کو حاصل ہے وہ پارس کی کسی اور چاہنے والی کو حاصل نہیں ہوگا۔ مرینا نے پارس کو اپنا کر جو سے کسی طرح کی دشمنی نہیں کی۔ وہ پارس کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، پھر اس کی نظروں میں اور دھڑکتے ہوئے دل میں جو سے زیادہ پارس اہم تھا۔ بہرحال مرینا نے لسٹ کو چیک کیا تو جو کے بعد اس کی چاہنے والی صرف ایک ماریا رہ گئی تھی، زہریلی ماریا، اور یہی لڑکی اس کے کام آ سکتی تھی۔ اس نے پارس کے ریکارڈ سے ماریا کے باپ کا فون نمبر معلوم کیا، فون نمبر کے ساتھ ایڈریس بھی معلوم ہوا۔ وہ اسی شہر لنڈن میں تھی، دریائے ٹیمز کے قریب ہی کنگسٹن روڈ کی ایک سٹریٹ میں رہتی تھی۔ مرینا نے نمبر ڈائل کیے، رابطہ قائم ہونے پر دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز سنائی دی۔ مرینا نے آواز سن کر ریسیور رکھ دیا، خاتون کے دماغ میں پہنچی، پتہ چلا کہ وہ ماریا کی ماں ہے۔ ماریا نے پوچھا، ماما کس کا فون تھا؟ پتہ نہیں کون تھا، لائن کٹ گئی۔ مرینا ماریا کے اندر پہنچ گئی، اس کے موجودہ حالات معلوم کرنے لگی۔ پتہ چلا وہ اب بھی زہریلی ہے مگر خطرناک نہیں ہے۔ مسلسل علاج کے ذریعے اس کے اندر سے زہریلے اثرات ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ ختم تو نہیں ہوئے تھے، البتہ کم ہو گئے تھے، اور جو کم ہو گئے تھے وہ رفتہ رفتہ بڑھ سکتے تھے، اس لیے ہر 15 دن میں اس کا میڈیکل چیک اپ ہوا کرتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ پہلے جیسی وحشی نہیں تھی۔ اس کے والدین نے اس پر بڑی محنت کی تھی، بڑی رقم خرچ کی تھی اور اسے مہذب بناتے رہے تھے۔ اب اسے پہلے کی طرح غصہ نہیں آتا تھا، وہ ہر بات پر نرمی سے سوچتی اور سمجھتی تھی۔ جب کوئی بات سوچنے سمجھنے کے باوجود ناقابل برداشت ہوتی تو وہ بات کرنے والے کو وارننگ دیتی کہ وہ فوراً چلا جائے ورنہ موت آ جائے گی۔ اگر وہ بات کرنے والا اس کی نظروں سے دور نہ ہوتا تو پھر وہ اسے ڈس لیتی تھی۔ اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اس کا زہریلا دماغ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا تھا۔ پارس نے اسے سمجھا دیا تھا کہ ایسے وقت وہ سانس روکے گی تو کوئی دشمن اس کے دماغ میں نہیں آئے گا۔ اسے مہذب بنانے کے دوران یوگا کی مشقیں کرائی گئی تھیں۔ اس وقت وہ مرینا کو اپنے دماغ میں محسوس نہ کر سکی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس کے جسم کا خون تبدیل کیا جا رہا تھا، زہریلا خون نکال کر تازہ خون داخل کیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، اس لیے مرینا آزادی سے اس کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ چونکہ ہر ماہ خون تبدیل کیا جاتا تھا، اس لیے ماریا کے باپ نے اپنی رہائش گاہ میں ایک چھوٹا سا ہسپتال قائم کر لیا تھا۔ وہاں اپنی بیٹی کے لیے بڑے تجربہ کار اور مہنگے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے رپورٹ دی تھی کہ ماریا اب نارمل ہوتی جا رہی ہے، اب اس کے خون میں برائے نام زہر رہ گیا ہے، شاید آئندہ خون تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب تبدیلی خون کا عمل مکمل ہو گیا تو ماریا کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اسے نیند آ رہی تھی۔ مرینا نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب وہ گہری نیند میں پہنچ گئی تو اس کے خوابیدہ دماغ پر عمل کرنے لگی۔ اسے اپنی معمولہ بنا کر یہ بات نقش کر دی کہ ماریا اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گی۔
इस अमल से फारिग होकर वो अपनी जगह हाजिर हो गई। आइंदा वो ज़रा सी मेहनत के बाद मारिया की जगह ले सकती थी। हालात भी उसका साथ दे रहे थे। अगर वो मारिया की जगह लेती और उसका मेडिकल चेकअप होता तो डॉक्टरों को उसके खून में जहरीले असरात ना मिलते, और 2 डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं कि आइंदा मारिया के जिस्म का खून तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस रिपोर्ट के पेश नज़र वो 100% मारिया साबित होने वाली थी। वो दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई। दूसरी सुबह मारिया जॉगिंग के लिए अपनी रिहाइशगाह के सामने वाले मैदान में आई। थोड़ी देर बाद मरीना वहां पहुंच गई। वहां और भी जवान लड़के और लड़कियां थीं और बूढ़े भी चहलकदमी कर रहे थे। मरीना उसके साथ पंजों के बल आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हुए बोली, तुम बेहद हसीन हो। मारिया ने कहा, शुक्रिया, मगर तुम मुझसे भी ज़्यादा हसीन हो। मरीना ने पूछा, मैं तुम्हें किसी जगह नज़र आती तो क्या तुम अपने ज़रूरी काम छोड़कर मुझसे मुलाकात करने के लिए आ जाती? मैं ज़रूरी काम ना छोड़ती, मगर दिल ही दिल में तुम्हारे बेपनाह हुस्न से मुतासिर ज़रूर होती। मरीना ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक ज़रूरी काम छोड़ दिया है। मारिया दौड़ते दौड़ते रुक गई, ताज्जुब से बोली, क्या मेरे लिए? हाँ, मैं अभी उधर से अपनी कार में गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो देखती रह गई, सीधी तुम्हारे पास चली आई। क्या इससे साबित नहीं होता कि तुम मुझसे ज़्यादा हसीन हो? मारिया हंसते हुए बोली, तुमने ऐसी दलील दी है कि मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात से इनकार नहीं करना होगा। नहीं करूंगी। वो बात क्या है? अगर मैं खूबसूरत हूं तो तुम्हारा दिल मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों ने हंसते हुए मुसाफहा किया, एक दूसरे को अपना नाम बताया और यूं दोस्ती की इब्तदा हो गई। दोनों के कद और जिसामत में 19-20 का फ़र्क था। अगर मारिया की जगह मरीना आ जाती या मरीना की जगह मारिया आ जाती तो शायद पारस भी इस मामूली से फ़र्क को समझ ना पाता। मरीना ने 2 रातों तक पारस से राबता नहीं किया। एक तो इसलिए कि वो 48 घंटों तक मारिया के मामले में मसरूफ़ रही, दूसरा ये कि वो जानबूझकर पारस से कतराती रही। उसके दिमाग में जाने से उसके बाजुओं में चले जाने को जी मचलता था। उसने तीसरे दिन अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई, खुद को मारिया के रूप में ढाल लिया। उसने पारस से कहा था, सिर्फ 4 दिन सब्र करो, फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। वो 4 दिन से पहले तीसरे ही दिन मारिया बन गई थी। अब आखिरी मरहला रह गया था, मारिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना था। वैसे तो यह आसान था, मरीना उसके दिमाग में जल्जले पैदा करके या उसकी सांस रोककर उसे हलाक कर सकती थी, लेकिन मसला ये था कि मारिया की लाश किसी को ना मिले ताकि दुनिया वाले मरीना को मारिया तस्लीम कर सकें। ये मरहला तय करने से पहले उसने पारस से राबता किया। उसे खुशखबरी सुनाना चाहती थी कि वो आज रात उससे मुलाकात करेगी। जब वो पारस के दिमाग में पहुंची तो वहां पहले ही सलमान मौजूद था। उसे पूछ रहा था, क्या मरीना आई थी? पारस ने जवाब दिया, नहीं, आज तीसरा दिन है और वो एक पल के लिए भी नहीं आई। आप तो जानते हैं अंकल, वो चुपचाप आती है तब भी मैं उसे महसूस करके अनजान बन जाता हूँ, लेकिन वो खामोशी से भी नहीं आई। पारस की इस बात ने उसे चौंका दिया कि वो उसकी सोच की लहरों को महसूस करके अनजान बन जाता है। इसका मतलब साफ था, वो उसका मामूल और ताबेदार नहीं है, उसे अब तक उल्लू बनाता आ रहा है। यही तजर्बात मरीना को सिखाते थे कि इंसान को अपनी किसी कामयाबी का भरपूर यकीन नहीं करना चाहिए। बाज़ कामयाबियों के पीछे नाकामियां छुपी होती हैं जो किसी वक्त नाकाबिले तलाफी नुकसान की सूरत में जाहिर होती हैं। वो बदस्तूर पारस के दिमाग में थी और समझ रही थी। उन लम्हात में पारस उसे इसलिए महसूस नहीं कर रहा है कि सलमान वहाँ पहले से मौजूद था। अगर एक ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद हो और उसके बाद दूसरा आए तो उसकी सोच की लहरें महसूस नहीं की जाती। सलमान उससे पूछ रहा था, तुम्हारा क्या ख्याल है? मरीना ने इतनी तवील खामोशी क्यों इख्तियार की है? मैं क्या कह सकता हूँ? एक ख्याल आता है कि कहीं वो बीमार ना हो या किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो और मुझसे राबता कायम करने के काबिल ना रही हो, वरना वो मेरी दीवानी है। 1000 मसरूफियात के बावजूद मेरे पास ज़रूर आती। बाय द वे अंकल, आप उसके दिमाग में जाकर कुछ ना कुछ मालूम कर सकते हैं। अच्छी बात है, मैं अभी जाकर वापस आता हूँ। मरीना फ़ौरन ही दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। चंद सेकंड के बाद पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही उसने सांस रोक ली, फिर सांस लेने लगी। चंद लम्हों के बाद सलमान ने दिमाग में आते हुए कहा, मैं सलमान हूँ, पारस के बारे में कुछ कहने आया हूँ। वो बोली, कुछ कहने से पहले सुन लो, मुझे 2 रोज़ पहले ही पारस का फ्रॉड मालूम हो गया था। वो मेरा मामूल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कोई बड़ा नुकसान उठाने से बच गई हूँ। आइंदा मैं उस फरेबी पर थूकने भी नहीं आऊँगी। जाओ, भाग जाओ। उसने सांस रोक ली। सलमान दिमाग से निकल गया।
وہ چند لمحوں تک انتظار کرتی رہی۔ جب وہ نہیں آیا تو وہ پارس کے دماغ میں آ گئی۔ سلمان وہاں موجود تھا، اسے مرینا کی باتیں لفظ بلفظ سنا رہا تھا۔ پارس نے تعجب سے کہا، میں حیران ہوں، ہر طرح سے محتاط رہنے کے باوجود میرا فراڈ کیسے کھل گیا؟ سلمان نے کہا، 2 روز پہلے میں کبھی تم سے اور کبھی سسٹر سے باتیں کر رہا تھا۔ جب میں تمہارے پاس آتا تھا تو اس وقت مرینا آئی ہوگی۔ تم نے میری موجودگی کے باعث اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا ہوگا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔